हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ए टू जेड। और आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 5 सोशल स्टडी का क्लास 9 का, और इसका टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन एंड लाइफ। तो हम लोग देखेंगे हमारा देश में हाउ मैनी वेजिटेशन एंड हाउ मैनी वाइल्ड लाइफ्स हैं, हाउ मैनी डेज वी आर इन वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो वैसे तो आप ग्रास लैंड्स वगैरह और काफ़ी वाइल्ड एनिमल्स बर्ड्स वगैरह देखा करते हैं, तो उनका उस तरीके से जो हमारा इंडिया है इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है इन ऑफ द वर्ल्ड with about 47,000 plant species, occupies 10th place in the world and 4th in Asia. There are about 1500 flowering plants in India, which according to 6% in the world. 1500 flowering plants हैं जो वर्ल्ड का 6% हैं, और and other flowering plants also. The country has many non-flowering plants such as ferns, algae and fungi. India also has approximately 1900 species of animals, as well as a rich variety of fish and its fresh and marine waters also. It means India is very much diverse in nature. Natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by human for a long time. This is termed as virgin vegetation. So this is the definition of virgin vegetation. Virgin vegetation is not disturbed by any human activities. Mostly it is intact. So this type of nature are known as virgin vegetation. Thus, cultivated crops and fruits orchards form part of vegetation, but not natural vegetation. So here, friends, you have to give emphasis on the natural garden, crops cultivated for fields and orchards are not of natural origin or virgin vegetation. अब ये देखिए, कह रहे हैं डू यू नो, यस यू नो, द वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज इंडेमिक और इंडिजिनस। तो जो आपके देसी टाइप के पेड़ होते हैं विच आर प्योरली ऑफ इंडियन ओरिजिन आर नोन एज indigenous plants. Indigenous species are endemic, but those which have been from outside India are termed as exotic plants. तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। endemic, कौन कौन से, endemic and exotic, है ना। exotic plants endemic को ही कहते हैं, इंडेमिक प्लांट्स को ही कहते हैं इंडिजिनस प्लांट्स। तो आप इनको ध्यान कर लीजिए अच्छे से। आगे देखते हैं हम लोग। तो इसके अलावा जो है जो टर्म फ्लोरा एंड फौना यूज किया जाता है उसके बारे में समझते हैं। फ्लोरा इज यूज टू डोनेट प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और पीरियड। जो फ्लोरा क्या है, फ्लोरा किसी भी एक पर्टिकुलर प्लांट्स या रीजन में जो प्लांट्स हैं उनको दिखाएगा कि यहाँ का फ्लोरा ऐसा है, तो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी रहेगा, पर्टिकुलर एरिया रहेगा। सिमिलरली द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर रेफर्ड टू एज फोना, और जो वहाँ पे उस समय एनिमल स्पीसीज होंगी उनको फोना कहेंगे। तो कंबाइंडली वी कॉल्ड फ्लोरा एंड फोना। दिस ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फोना किंगडम इज ड्यू टू द फॉलोइंग फीचर्स। सो फ्रेंड्स, व्हाई दिस इज हाई डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फोना इन डिफरेंट रीजन्स? It may be due to some factors influencing this. These are the like relief
Relief means the topography. It may be even, uneven, undue terrain. So land relief में पहला land. Land affects the natural vegetation directly and indirectly. अब जानते हैं लैंड कैसी है, एकदम स्लोप है, एकदम प्लेन है, प्लेटू है, माउंटेन है ना, सैंडी सॉयल है, किस टाइप की सॉयल है, तो इस तरीके से वेजिटेशन डिफरेंट होगा. Vegetation in mountainous, plateau and plain areas or in dry and wet areas, nature of land influence the type of vegetation. The fertile land is generally devoted to agriculture. The undulating and rough terrain are areas where grasslands and woodlands develop and give shelter to a variety of animals. Next point is soil. The soils are also very overspaced. Different types of soils provide basis for different types of vegetation. The sandy soil of the desert support cactus and thorny bulbs, while the marshy deltaic soils support mangroves. है ना, सुंदरबन के डेल्टा वहाँ मैंग्रोव सुंदरीपन उगते हैं, तो मैंग्रोव्स एंड डेल्टाइक वेजिटेशन. द हिल स्लोप्स विद सम डेप्थ ऑफ सॉइल हैव कॉनिकल ट्रीज. जो हिली एरियाज है वहाँ कॉनिकल ट्रीज उगते हैं. दूसरा फैक्टर है क्लाइमेट. क्लाइमेट में क्या आता है, क्लाइमेट की सब हेडिंग्स में टेम्परेचर. टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, mainly determined by temperature along with the humidity. So friends, vegetation is mainly dependent on temperature along with the humidity in the air. Precipitation and soil is also act a main important role. On the slopes of the Himalaya and the hills of the peninsula above the height of 915 meters, the fall in the temperature affects the types of vegetation and its growth and change it from tropical to subtropical, temperate and alpine vegetation. So friends, here you can see according to temperature the zones are divided: tropical, subtropical, temperate and alpine vegetation. Here you can see the table and temperature, vegetation zone, mean annual average, mean temperature and remarks. So here is shown tropical, subtropical, temperate and alpine. तो देखिए ट्रॉपिकल में अबाउट 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, सब ट्रॉपिकल में 17 to 24, टेम्परेट में 7 to 17, अल्पाइन में बिलो 7, मीन्स सबसे ज़्यादा ठंडा अल्पाइन रीजन है. डिग्री सेंटीग्रेड में देखें अब 18 डिग्री, 10 to 18 डिग्री, -1 to -10, बिलो -1. And what are the characteristics of this remarks? In tropical area there is no frost, while in subtropical frost is rare. In temperate frost some snow, while alpine is very common frost. So next factor is photoperiod, means sunlight. How many time sunlight how many times sunlight get by plants. So according to this they grow. The variation in duration of sunlight at different places is due to different in latitude, altitude, season and duration of the day. Due to longer duration the sunlight is grow faster in summer. तो बच्चों जानते हो आप लोग कि विंटर सीजन में समर जो कमी होती है और इधर आपकी समर सीजन में विंटर जो समर सीजन में सनलाइट काफ़ी होती है. तो जो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको ज़्यादा सनलाइट चाहिए, द प्लांट्स विच रिक्वायर मोर सनलाइट दे कैन ग्रो फास्ट इन समर सीजन वाइल अदर्स ग्रो इन विंटर सीजन. तो सनलाइट आल्सो डिफर फ्रॉम ड्यू टू latitude, altitude and season. Sunlight may be dim or light or more strong. And now find out the answer of this question. Answer is very interesting. Why are the southern slopes in Himalayan region covered with thick forest vegetation cover as compared to northern slopes of the same hill? तो भैया इसका सीधा सा बात है कि जो साउथ वेस्ट मानसून होती है वो सदर्न साइड पे वो बारिश करती है और उसको वेस्टर्न घाट लीवर्ड साइड पड़ जाता है, तो वहाँ पे बारिश इतनी हो ही नहीं पाती है.
तो इसलिए उधर वेजिटेशन नहीं होता, इधर थिक वेजिटेशन होता है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मीन्स बारिश। इन इंडिया ऑलमोस्ट द इंटर रेनफॉल इज ब्रॉट इन बाय एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून। देखिए यहाँ पे साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट मानसून होते हैं जून से सितंबर तक, एंड रिट्रीटिंग नॉर्थ वेस्ट मानसून area of heavy rainfall have more dense vegetation and compared to areas of less rainfall। तो जहाँ पे मानसून है वहीं पे है बारिश, बारिश है जहाँ पे वहीं पे है वेजिटेशन। तो सब बता ही रहा है, साउथ वेस्ट मानसून एंड साउथ ईस्ट मानसून। तो बारिश इसी से होती है हमारे देश में। अब कह रहा है नोट में देखिए, कह रहा है वाई आर द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट एंड नॉट द ईस्टर्न स्लोप्स। तो वही है, द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज मोर ऑन वेस्टर्न घाट्स रादर देन ईस्टर्न स्लोप्स, सो द मोर वेजिटेशन प्रेजेंट ऑन वेस्टर्न घाट्स देन द ईस्टर्न घाट्स। How have you ever thought as to why forests are important for human beings? तो आपको ये सबको पता है forests are very much important to human beings because of they provide us so much environment value. They provide us oxygen, है ना, they provide us material value like woods, resins, colors, or so many things. Have you ever thought as why forests are important for human beings? Forests are renewable sources. This is the most important, renewable sources, and play a major role in enhancing a quality of environment. They modify local climate, control soil erosion, regulate stream flow, support a variety of industries, provide livelihood for many communities, and offer panoramic or scenic view for recreation. They control wind force and temperature and cause rains. So आप देख रहे हैं ये पे, this is the importance of this is the importance of vegetation or environment. So many qualities are provided to human beings, so it is very useful for us. They provide humus to the soil and central to the wildlife. India's natural vegetation has undergone many changes due to several factors such as the growing demand for cultivated lands, so as well as they provide shelter for wild animals and so many reliefs to human beings also. But due to practices, this area is going to slow down due to many cultivated land. बच्चों अब यहाँ देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग, अर्बनाइजेशन एंड ओवर ग्रेजिंग ऑफ पास्चर्स। तो पास्चर्स क्या होते हैं? ये घास के मैदान होते हैं पास्चर्स बच्चों। पास्चर्स कहते हैं घास के मैदानों को। ये पे तो घास के मैदान होते हैं। डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग, अर्बनाइजेशन एंड ओवर ग्रेजिंग ऑफ पास्चर्स। तो ये सब होता है, क्या हो रहा है? इंडस्ट्रीज और माइनिंग का अर्बनाइजेशन हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है पास्चर्स में। मतलब जितनी घास है उससे ज़्यादा चर रहे हैं वहाँ पे, तो क्या होगा? घास तो होगी नहीं, और जो चरने वाले होंगे उनके पैरों से मिट्टी खुद जाएगी और वहाँ पे सॉइल इरोजन होगा। लेट्स सी व्हाट अबाउट द एक्टिविटीज़। सेलिब्रेट वन महोत्सव इन योर स्कूल लोकेलिटी एंड plant a few saplings and notice their growth. Yes, it is celebrated in our school and neighborhood with great enthusiasm, but there is after that nobody take care, so there is no plant. Only old plants are remaining in the city. The vegetable cover of India in large parts is more natural in the real sense, except in some inaccessible regions like the Himalaya hilly region, central India, and the Vanasthali. The vegetation in most of the areas has been modified, as some places are replaced or degraded by some human occupancy.
तो वेजिटेशन कवर इंडिया का जो है लार्ज पार्ट में फैला हुआ है, बट ये है कि कहीं कहीं पे ये अनएसेसिबल है, लाइक हिमालयाज में और मरुस्थल में। वेजिटेशन इन मोस्ट ऑफ द एरियाज हैज़ बीन मॉडिफाइड एट सम प्लेसेस आर रिप्लेस्ड और डिग्रेडेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। तो जहाँ जहाँ आदमी पहुँच नहीं सकता है वहाँ तो अभी वेजिटेशन है इंटैक्ट, जहाँ पहुँच सकता है वहाँ आदमी ने अपने हिसाब से उसको तोड़फोड़ मरोड़ लिया है, बदल दिया है। नाउ लिस्ट अबाउट एक्टिविटीज़, स्टडी द ग्राफ बार ग्राफ एंड देन आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द स्टेट हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। What is the second? Name the union territory having minimum area under forest cover and why. So let's see, it's in next page. You can see here the state which has maximum forest cover in the area. This is Mizoram. You can see here. This is Mizoram. Mizoram, it has longest whole Mizoram. So highest in Mizoram. And the union territory which have smallest area is seen here, Daman and Diu. Here is Mizoram. These are two questions given in the box. Here is the answer. Mizoram has the largest area of forest, and Daman and Diu, which is a union territory, have a less forest area. According to India State of Forest Report 2011, the forest cover in India 20.05%. ये पुराना डेटा है, 2001 में बता रहे हैं कि जो फॉरेस्ट कवर था इंडिया में 20.05% था, और जिसको सरकार करने का सोच रही है 33%। वो अभी हो नहीं पा रहा है, अचीवमेंट नहीं हो पा रहा है। और नेक्स्ट हेडिंग आती है बच्चों इकोसिस्टम। तो व्हाट इज इकोसिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज लिसन इट केयरफुली। प्लांट्स occur in distinct groups of communities in areas having similar climatic condition. The nature of the plants in the area to a large extent determine the animal life in the area. When the vegetation is altered, the animal life also changes. All plants and animals in an area are interdependent and interrelated to their physical environment, thus forming an ecosystem. Human beings are also an integral part of the ecosystem. How do human beings influence the ecology of a region? They utilize the vegetation and wildlife. The greed of human beings leads to overutilization of the resources. They cut the trees and kill the animals, creating ecological imbalance. As a result, some of the plants and animals have reached the verge of extinction. Do you know that a large ecosystem on land having distinct type of vegetation and animal life, it's called a biome. The biome are identified on the basis of plants. तो दोस्तों देखा आपने इकोसिस्टम क्या था। इकोसिस्टम पूरा क्या था, जो प्लांट्स होते हैं डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज़ एरिया में पाए जाते हैं। प्लांट्स अगर इन डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज़ इन एरिया हैविंग सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन। तो सेम क्लाइमेटिक कंडीशन के जो प्लांट्स होते हैं ग्रुप में पाए जाते हैं, तो उन्हीं के अनुसार वहाँ पे और भी जीवन प्रभावित होता है। द नेचर ऑफ प्लांट्स इन एरिया टू अ लार्ज एक्सटेंट डिटरमाइन द एनिमल लाइफ। तो जिस तरीके के पेड़ पौधे होंगे तो वो डिटरमाइन करेंगे वहाँ की एनिमल लाइफ को भी। आल्सो ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट। और जो प्लांट्स एंड एनिमल्स वो इंटरडिपेंडेंट हैं एंड इंटर रिलेटेड टू देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, दस फार्मिंग एंड इकोसिस्टम। सो दिस इज इकोसिस्टम, है ना, जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग प्लस मैन ये सब मिलके एक सिस्टम को बनाए तो वो होता है इकोसिस्टम। मतलब जहाँ पे प्लांट्स एक जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन होगी वहाँ पे एक जैसे प्लांट उगाएंगे, तो उन जैसे प्लांट उगाएंगे तो उन्हीं प्लांट्स के अनुसार वहाँ पे उसमें एनिमल स्पीसीज़ भी रहेंगी और एनिमल स्पीसीज़ भी वहाँ रहेंगी, तो वो आपस में इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड रहेंगे। तो इसी से एक माहौल बनेगा, फिजिकल एनवायरनमेंट, 10 फार्मिंग इकोसिस्टम।
ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। जो ह्यूमन बींग है वो भी पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र का एक अंग है। हाउ डू ह्यूमन बींग्स इन्फ्लुएंस द इकोलॉजी ऑफ ए रीजन। तो किसी ह्यूमन बींग्स ने किसी रीजन की इकोलॉजी को कैसे इन्फ्लुएंस किया है, तो बहुत बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस किया है। दे यूटिलाइज द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। उसने क्या किया, वहाँ का वेजिटेशन को यूज कर लिया, वहाँ के जानवरों को भी यूज कर लिया है। द ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग्स लीड्स टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स। तो जो आदमी का लालच है वो उसको और भी ज़्यादा प्रयोग करता ही जा रहा है, ये नहीं देख रहा है कि उससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। दे कट द ट्रीज एंड किल द एनिमल्स क्रिएटिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। और वो क्या करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, जानवरों को मार देते हैं। इससे क्या होता है, पारिस्थितिकी असंतुलन, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है। एज अ रिजल्ट सम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव रीच्ड द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो जब ऐसा होता है तो कुछ प्लांट्स और एनिमल्स एक्सटिंक्शन के किनारे पे पहुंच जाते हैं। Do you know that a large ecosystem on land having distinct type of vegetation and animal life is called a biome। तो आप जानते हो कि इकोसिस्टम में लैंड पे डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं और वेजिटेबल्स पाए जाते हैं, उनको कहते हैं बायोम। दीज बायोम्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स। तो कोई ऐसा एरिया हो जहाँ पे कुछ खास तरीके के पेड़ पौधे और कुछ खास तरीके के जानवर पाए जाते हैं, तो उसको कहेंगे एक बायोम। हो सकता है एक बहुत बड़ा जंगल हो, उसमें 4-5 बायोम हो। जहाँ पे शेर रहते हो वहाँ के पेड़ पौधे कुछ अलग टाइप के हों, वहीं पे शेर रहते हो। कहीं पे कुछ और टाइप पेड़ पौधे तो वहाँ बंदर रहते हो। कहीं और कुछ पेड़ पौधे हैं तो वहाँ हाथी रह रहे हैं। तो वह सब एक एक करके बायोम है। तो बायोम है, ऑन द बेसिस ऑफ बायोम द प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज, देखिए अब टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आ गया। तो फर्स्ट है द फॉलोइंग मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन टू बी आइडेंटिफाइड इन आवर कंट्री। तो कैसे, जैसे जैसे प्लांट्स थे उनके साथ वैसी वैसी एनिमल लाइफ्स भी हो गई, तो उस हिसाब से वो जंगल ही अलग अलग हो गए। तो फर्स्ट वन इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब ये ट्रॉपिकल से मतलब उसमें होता है गर्मी में, एवरग्रीन मतलब हमेशा हरे भरे रहने वाले फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो जो हमारी ऐसे पृथ्वी है, ये है इक्वेटर, इसी के आसपास होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पे बहुत गर्मी होती है और रोज़ बारिश भी होती है, तो यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमेशा हरे भरे रहने वाले। और दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, वो थोड़ा ऊपर और जाके मिलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो गर्मी सर्दियों में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। तीसरा है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स आर ग्रोज इन दैट प्लेसेस वेयर देयर इज वेरी लो ह्यूमिडिटी, yes, and there is no use of water. You can't use water there feasibly, so it's the problem in desert region. Montane forest as name suggested that the plants grow on mountain ranges, they are called montane forests. The plant species are different and the plant shape are different, they are mainly in conical shape. 6 है mangrove forest. As you know, mangrove forest mostly grow in deltaic region. And which one is the biggest delta of India? Sundarban is the biggest delta of India. It's famous for Royal Bengal and Sundari plants, so it is known as Sundarban delta. तो बच्चों ये सारे फॉरेस्ट थे, हम लोग एक एक फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट आर रेस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये हैवी रेनफॉल में होते हैं। यहाँ पे देखिए मैप पे दिखा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट सोन विद डार्क ग्रीन कलर। हाँ, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट सोन इन ग्रीन कलर। दिस रीजन ऑफ dense forest have dense forest. Second one is tropical deciduous forest. So India mostly contain tropical deciduous forest.
एंड इज डोनेटेड बाय लाइट ग्रीन कलर। ये ट्रॉपिकल, ये देखिए आप ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का सबसे ज़्यादा एरिया है। जो यूपी वगैरह में हम लोग देखते हैं वो सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस है। फिर देखते हैं हम लोग माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट लाइट ग्रीन, ये देखिए जो हिमालयन रेंज वगैरह में है, जहाँ जहाँ पहाड़ है वो माउंटेन फॉरेस्ट है। इधर भी माउंटेन फॉरेस्ट है, यहाँ सिक्किम में भी है माउंटेन फॉरेस्ट है। इसके अलावा अब है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। जो वाइट एरिया है वो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है। मतलब यहाँ भी थॉर्न है, यहाँ भी देखिए थॉर्न है, जहाँ जहाँ ये वाइट दिख रहा अपने एरिया में, यहाँ भी थॉर्न एरिया है। कांटेदार पेड़ पाए जाते हैं ना, और यहाँ नहीं है। ये तो दूसरा देश है, तो ये नहीं है, अपने देश की बात हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं बच्चों। और देखते हैं बच्चों, they are the best in areas having more than 200 centimeter rainfall with a short dry season। इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया। तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन ही चल रहा था। 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है वहाँ पे विद अ शॉर्ट ड्राई सीजन। 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, मतलब काफ़ी रेनफॉल होती है, तभी तो हरे भरे बने रहते हैं। द ट्रीज रीच द ग्रेट हाइट ऑफ 60 सेंटीमीटर तक जो है इनकी हाइट हो जाती है। एंड इवन अबव दे कैन ग्रो मोर देन 60 मीटर। सिंस द रीजन इज वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, इट हैज़ अ लग्जूरियंट वेजिटेशन और तो बच्चों वहाँ पे क्या है, जो पूरे साल का सीज़न है वार्म एंड वेट रहता है, जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए फेवरेबल है। तो वहाँ पे कुछ न कुछ हमेशा बढ़ता ही रहता है। इट है लग्जूरियंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड्स, ट्रीज श्रब्स, ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, और क्या हो जाती है वहाँ पे, ट्रीज हैं, श्रब्स हैं एंड क्रीपर्स हैं, गिविंग or multi-layered structure. There are no definite time of trees to shed their leaves as these forests appear as a year round। तो यहाँ पे पत्ते तो होता है, डेसिडुअस होता है पत्तों में, लेकिन इतनी मल्टी लेयर्ड में प्लांट्स होते हैं, तो कभी कोई गिरा रहा, कभी कोई गिरा रहा, किसी का मौसम फिक्स नहीं है, तो वहाँ पे हरा भरा दिखता रहता है, इसलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। Some द commercially important trees of this forest are इबोनी, महागनी, रोजवुड, रबर एंड सिनकोना। ये इनके इम्पॉर्टेंट प्लांट्स हैं, कमर्शियल प्लांट्स हैं यहाँ के। द कॉमन एनिमल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर एलिफेंट। ये देखिए एनिमल्स भी पाए जाते हैं इसमें, एलिफेंट है, मंकी है, लीमर है, डियर है, वन हॉर्न राइनो भी यहाँ पे है। ग्रासेस फाउंड इन द जंगल्स ऑफ द असम, वेस्ट बंगाल। बिसाइड्स दीज एनिमल्स प्लेंटी ऑफ बर्ड्स, bats, sloth, scorpions and snails are also found in the jungle। दूसरा टाइप का देखते हैं हम लोग ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिससे कि हम बहुत ही वेल नोन है, क्योंकि हम लोग प्लेन में रहते हैं, तो प्लेन में मोस्टली क्या है, डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं। तो दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ये सबसे ज़्यादा फैले हुए हैं इंडिया में, और मानसून फॉरेस्ट भी इनको कहते हैं। और यहाँ पे रेनफॉल होती है 200 से 70 मीटर के करीब, और ये अपनी शेड कर देते हैं। दे शेड लीव्स अबाउट 6 to 8 वीक्स इन अ ड्राई समर। ठीक है, क्यों करते हैं, ड्राई समर में पानी की कमी होती है, तो लीव्स रहेंगी तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा, तो इससे अच्छा है कि उनको सेट कर दो, तो इवापोरेशन नहीं होगा, पानी की कमी को बचा लेगा पौधा और जीवित बचा रहेगा। ऑन द basis of availability of water, these forests are further divided into moist and dry deciduous। तो on the basis of availability of water, the deciduous forests are divided into two, moist and dry deciduous। The former is found in area receiving rainfall between 200 centimeter। हाँ, तो जो आपके मॉइस्ट रेनफॉल है, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, वहाँ पे
200 से 100 सेंटीमीटर होती है बारिश, वो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गए, और जो उससे कम होगी तो वहाँ पे ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गए। These forests exist therefore mostly in the except part of the country, northeastern states along with foothills, Himalaya, Jharkhand, West Odisha, Chhattisgarh and the eastern slopes of the Western Ghats. Teak. Teak is the most dominant species of this forest. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्रैम कर लो। Teak is the main plant of the dry deciduous forest. Bamboo, sal, sesame, sandalwood, khair, कुसुन, अर्जुन एंड मलबेरी आर द कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज। तो अब बच्चों ये हमारे डेसिडुअस अपने एरिया का है, तो इसमें से कई पौधों के आप नाम जान रहे होंगे, कईयों के यू हैव नॉट एक्वेंटेड विद, बट ऑल अदर्स यू नो। शीशम, साल, सैंडलवुड, खैर, कुसुम अर्जुन एंड मलबेरी मतलब सहतूत। तो आगे बढ़ते हैं। द ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज हैविंग रेनफॉल बिटवीन, अब ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है वहाँ पे थोड़ा हैवी रेनफॉल नहीं होगी, हम 100 से 170 सेंटीमीटर होगा। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रेनियर पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू एंड द प्लेटू ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। दीज आर ओपन स्टेट्स इन विच टीक, साल, पीपल एंड नीम ग्रो। तो ये तो नाम सुने होंगे हमने। लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन हैज़ बीन क्लियर्ड फॉर कल्टिवेशन ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द यूज फॉर ग्रेज। तो इसका काफ़ी पार्ट इस जंगल का साफ़ किया जा रहा है, जिससे कि वहाँ पे पेड़ पौधे उगाए जा सकें और जानवरों को चारा उगाया जा सके। तो इस तरीके से फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय ही हो रहा है एक तरीके से। तो ये देखिए ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है, इसमें कई लेयर्स नहीं है, जैसे कि सब उसमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में था। In these forests, the common animals found are lion, tiger, pig, deer and elephant. A huge variety of birds, lizards, snakes and tortoises are also found. यहाँ पे काफ़ी एनिमल्स पाए जाते हैं जो हम लोग देखे रहते हैं। द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, अब देखिए कौन से हैं जहाँ पे कांटे पाए जाते हैं ना, झाड़ियाँ पाई जाती हैं, वो कौन से हैं। दो रीजन्स वेयर 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज। जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन ऐसा होता है कटीला जैसा और बुशेस जैसी। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। सही बात है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में पाया जाता है, बिकॉज साउथ वेस्ट मानसून डजंट रीच देयर एंड प्रेसिपिटेट बिफोर दैट, सो द no rainfall reach there, so that area is mostly arid, so vegetation is also like berry and other plants including semi and areas of Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttar Pradesh and Haryana. Acacia, palms, euphorbia and cacti are the main plant species. तो इसके लिए देखिए जो ज़्यादातर सूखे में उगने वाले पौधे हैं और ज़्यादातर कटीले हैं वो हैं, जिससे पानी का लॉस ना हो, कांटे से वो अपना पानी को पूरा कर सकें। तो राजस्थान वगैरह से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में क्या अकेशिया का, पाम का, यूफोर्बिया का और कैक्टाई का ये पौधे दिए गए हैं उगाने के लिए। Are the main plant species. These are scattered and have long roots penetrating deep into the soil in order to get moisture. और ये these plants are of this type which have long root which insert deep in the soil to get moisture. The stems are succulent to conserve water. Leaves are mostly thick and small, miniature operation. These forests give way to thorn forest and scrub in arid areas. तो क्या होता है, इनका जो स्टेम होता है वो सकुलेंट होता है जो कि वाटर को रोके रखे, और इनकी पत्तियां बहुत ही पतली होती हैं और वो भी जो है वाटर को ज़्यादा लॉस नहीं होने देती हैं। बाकी तो जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं। ये देखिए यहाँ पे चित्र दे रखा है थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। In these forests, the common animals are rat, mice, rabbits,
रैबिट्स, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस, हॉर्स एंड कैमल्स, ये इस एरिया के जानवर हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों अगला टाइप है फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट। मतलब जो इट इज़ सिचुएटेड इन माउंटेनस एरियाज और द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड लीड्स टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे इसका वेजिटेशन टाइप भी चेंज हो जाता है। इन सच there is a succession of natural vegetation belts in the same order as we see from the tropical to the tundra region। तो ट्रॉपिकल से जब टुंड्रा रीजन की ओर बढ़ेंगे तो नेचुरल वेजिटेशन चेंज होता जाएगा। द वेट टेम्परेचर टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन अ हाइट ऑफ 1000 एंड 2000 मीटर्स। 1000 से 2000 मीटर के बीच में वेट टेम्परेट टाइप फॉरेस्ट पाया जाएगा। एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज सच एज ओक, चेस्टनट predominate between 1500 एंड 3000 मीटर्स। 1500 से 3000 मीटर के बीच में ओक और चेस्टनट वगैरह काफ़ी पाए जाएंगे। टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग कॉनीफेरस ट्रीज, जो टेम्परेट फॉरेस्ट हैं उनमें कॉनीफर टाइप के ट्रीज ज़्यादा पाए जाते हैं, मोस्टली पाए जाते हैं, जैसे पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस एंड सेडार। दिस फॉरेस्ट कवर मोस्टली द सदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज। जो सदर्न स्लोप है हिमालय का उस पे ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। प्लेसेस हैविंग हाई एल्टीट्यूड इन सदर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो हाई एल्टीट्यूड हैं सदर्न में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया साइड में उधर ये पाए जाते हैं कोनीफेरस फॉरेस्ट। एट हायर एलिवेशन टेम्परेट ग्रासलैंड और कॉमन, और भी ऊंचाई पे जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड्स पाए जाएंगे। एट हाई एल्टीट्यूड जनरली मोर देन 3600 मीटर्स अबव द सी लेवल, मतलब 3600 मीटर, 3600 मीटर अबव द सी लेवल। टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड गिव वे टू द एल्पाइन वेजिटेशन। जो टेम्परेट फॉरेस्ट और ग्रास लैंड है वो उनकी जगह पे ज़्यादातर क्या हो जाता है, एल्पाइन वेजिटेशन उगाता है। जैसे सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन्स एंड बर्चेज आर द कॉमन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट में कौन सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन और बर्च वगैरह काफ़ी उगते हैं। हाउएवर दे गेट प्रोग्रेसिवली स्टंटेड एज दे अप्रोच द स्नो लाइन, और जैसे जैसे ये स्नो लाइन के करीब पहुंचते हैं तो ये स्टंटेड हो जाती है इनकी ग्रोथ, स्नो लाइन से ऊपर नहीं जा पाते, जैसा लगता है किसी ने इनको काट दिया हो। अल्टीमेटली थ्रू श्रब्स एंड स्क्रब्स दे मर्ज इनटू द एल्पाइन ग्रासलैंड। उसके बाद क्या होता है, उस ट्री लाइन के ऊपर क्या होता है, श्रब्स और स्क्रब्स वगैरह होते हैं और धीरे धीरे वो ग्रासलैंड में मर्ज हो जाते हैं। These are used extensively for grazing by nomadic tribes, और वो जो nomadic tribes होते हैं वहाँ पे वो grazing करते हैं, like गुज्जर्स एंड बकरवाल्स। At high altitude mosses and lichens form part of tundra vegetation, और हाई वेजिटेशन जो एल्टीट्यूड होता है वहाँ पे mosses and lichens जो वेजिटेशन के रूप में पाए जाते हैं। द कॉमन एनिमल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर काश्मीर स्टैग, spotted deer, wild sheep, jackrabbit, Tibetan antelope, snow leopard, squirrel, shaggy horned wild ibex, bear and rare red panda, sheep and goats with thick hair। तो दोस्तों ये था माउंटेन फॉरेस्ट। अब है मैंग्रोव टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है टाइडल एरिया में पाए जाते हैं, और जो कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स, मड एंड सिल्ट गेट एक्यूमुलेटेड ऑन सच कोस्ट। तो जो कोस्ट होता है उस पर जो है वो कीचड़ और सिल्ट वगैरह जमा होती है, वहाँ पे डेंस मैंग्रोव आर कॉमन वैराइटीज़ विद रूट्स ऑफ द प्लांट सबमर्ज्ड अंडर वाटर। तो जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है उनकी रूट्स जो है पानी के अंदर डूबी रहती हैं, कुछ ऊपर भी निकली रहती हैं। द डेल्टाज ऑफ गंगा, द महानदी, द कृष्णा, द गोदावरी एंड द कावेरी आर कवर्ड बाई सच वेजिटेशन। तो ये गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी यहाँ पे डेल्टा पाया जाता है, डेल्टा बनता है इनमें। इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी ट्रीज आर फाउंड। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वहाँ पे सुंदरी के फॉरेस्ट पाया जाता है, विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर। उसमें उसकी जो लकड़ी है काफ़ी ड्यूरेबल और हार्ड है। पाम, कोकोनट, केवड़ा, अगार एक्सेट्रा आल्सो ग्रो इन सम पार्ट्स ऑफ द डेल्टा।
कुछ पार्ट डेल्टा में केवड़ा, पाम, कोकोनट अगार भी उगता है। रॉयल बंगाल टाइगर इज़ द फेमस एनिमल इन दिस फॉरेस्ट। जो सुंदरबन फॉरेस्ट है वहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर काफ़ी फेमस है, पाया जाता है। टर्टल्स, क्रोकोडाइल, घड़ियाल्स एंड स्नेक्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। इसके अलावा टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल भी पाए जाते हैं। फिर लिखा लेट अस डिस्कस व्हाट विल हैपन इफ प्लांट्स एंड एनिमल डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो सीधी सी बात है, अगर प्लांट और एनिमल डिसअपियर हो जाएंगे अर्थ सरफेस से तो कोई भी नहीं बचेगा, है ना। अगर सिर्फ प्लांट्स ही ख़त्म हो जाए तो धीरे धीरे यहाँ पे सारी लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी। कैन द ह्यूमन बीइंग सर्वाइव अंडर सच अ सिचुएशन। तो ह्यूमन बीइंग कहाँ से सर्वाइव कर पाएगा, जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो धीरे धीरे ऑक्सीजन गायब हो जाएगी, तो धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग भी यहाँ से धीरे धीरे जो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और बिना प्लांट्स के फूड रिसोर्सेज भी कम हो जाएंगे, तो फिर धीरे धीरे ह्यूमन लाइफ जो है गायब हो जाएगी। वाई इज बायोडाइवर्सिटी नेसेसरी एंड वाई शुड इट बी कंजर्व। तो बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत ज़रूरी है और इसको कंजर्व करना भी ज़रूरी है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो नेचर में एक दूसरे को इकोसिस्टम को बनाने में सहयोग करते हैं। उनके किसी न किसी के गायब हो जाने से कुछ न कुछ सिस्टम में गड़बड़ी हो ही जाती है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, मेडिसिनल प्लांट्स। तो ये कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के नाम दे रखे हैं, जैसे सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी और कचनार, और इनका क्या क्या यूज है वो भी यहाँ पे ये बता रखा है इसमें, है ना। तो ये टेबल में आप पढ़ लोगे आराम से, तो कौन कौन सा बायो जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनका क्या यूज है यहाँ से। और देखते हैं आगे क्या दिया हो उसी में, जो डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डियर और सम अदर एनिमल्स फाउंड इन इंडिया, इट आल्सो हैज़ सेवरल स्पीसीज ऑफ मंकीज़। तो ये तो सीधी सी बात है, सॉरी इधर पहले पढ़ेंगे हम लोग, वहाँ से शुरू हुआ था, तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। लाइक इट्स फ्लोरा इंडिया इज आल्सो रिच इन इट्स फोना। जो जैसे फ्लोरा में ये रिच है इंडिया, वैसे फोना मतलब जंतुओं में भी, जैसे पेड़ पौधों में है रिच वैसे जंतुओं में भी। इट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीसीज, 90,000 एनिमल स्पीसीज है। द कंट्री हैज़ अबाउट 2,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स कंस्टिट्यूट 13% ऑफ वर्ड्स टोटल। मतलब 2,000 चिड़ियाँ हैं जो 13% टोटल वर्ड की पॉपुलेशन का है। देयर आर 2,546 स्पीसीज ऑफ फिश विच अकाउंट्स नियरली 12%। 2,546 स्पीसीज जो फिश की हैं वो टोटल वर्ड की 12%। इट आल्सो शेयर्स बिटवीन 5 to 8% ऑफ द वर्ड्स एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। 5 से 8% तक टोटल वर्ड का एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड मैमल है यहाँ पे। द एलिफेंट और द मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल अमंग द एनिमल्स अमंग द मैमल्स। जो मैमल्स हैं यानी कि स्तनधारी, उनके बीच में एलिफेंट जो है वो काफ़ी दमदार एक एनिमल है। दे आर फाउंड इन द हॉटबेड फॉरेस्ट ऑफ असम। असम, कर्नाटक और केरला में पाए जाते हैं। वन हॉर्न राइनो भी पाया जाता है, विच लिव इन स्वैम्पी एंड मार्सी लैंड्स ऑफ असम। तो वो दलदली जैसी ज़मीनों में असम और वेस्ट बंगाल में रहता है। एरिड एरियाज ऑफ रन ऑफ कच्छ एंड द थार डेजर्ट आर द हैबिटेट फॉर वाइल्ड एस। जो रन ऑफ कच्छ है एरिड एरिया और थार डेजर्ट, वहाँ पे जो है जंगली गधा और एमएल पाया जाता है, कैमल। इंडियन बाइसन, नीलगाय मतलब ब्लू बुल, जिसको चौसिंगा, 4 हॉर्न एंटीलोप, गजल एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डियर और सम अदर एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। तो ये सब तरीके के एनिमल्स इंडिया में पाए जाते हैं। इट आल्सो हैज़ सेवरल स्पीसीज ऑफ मंकीज, जो कई तरीके की मंकीज़ भी पाए जाते हैं। तो बच्चों ये बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिया हुआ है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 इन इंडिया। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बोथ टाइगर्स एंड लायंस। मतलब इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो कि दोनों हैं, जिसके यहाँ टाइगर भी है, लायन है। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लायन इज़ द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। तो जो गिर फॉरेस्ट गुजरात का, वहाँ नेचुरल हैबिटेट है लायंस का। टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश,
द सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द हिमालयन रीजन। और टाइगर्स भी पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में सुंदरबन में और हिमालयन रीजन में। लेपर्ड टू आर मेंबर ऑफ द कैट फैमिली। जो लेपर्ड है वो भी कैट फैमिली का ही मेंबर है। दे आर इम्पॉर्टेंट अमंग एनिमल्स ऑफ प्रे। और ये शिकार करने वाले जानवरों के बीच में काफ़ी फेमस हैं। द हिमालयन हार्बर अ हार्डी रेंज ऑफ एनिमल्स। तो जो हिमालय में है काफ़ी टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं। वी सर्वाइव में एक्सट्रीम कोल्ड, जो कि एक्सट्रीम कोल्ड में सर्वाइव कर सकते हैं। लद्दाख्स फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड्स और होम टू याक। याक जो है लद्दाख की फ्रीजिंग है, जहाँ पे जमा देने वाला ऊंचाई है, जमा देने वाली ठंडक होती है, वहाँ पाया जाता है। द सैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स और वाइल्ड एक्स वेइंग अराउंड 1 टन। अरे वो 1 टन का होता है। तिबेतन एंटीलोप, द भारल यानी ब्लू सीप, वाइल्ड सीप एंड द कियोंग यानी तिबेतन वाइल्ड एस। Furthermore, the ibex, bear, snow leopard and rare red panda are found in certain pockets. तो उसके अलावा ये भी सब एनिमल्स पाए जाते हैं वहाँ पे। इन द रिवर्स, लेक्स एंड कोस्टल एरिया टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल्स आर फाउंड। तो रिवर्स और लेक में और कोस्टल एरियाज में क्या टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल्स पाए जाते हैं। दोस्तों ये देखिए मैप में कुछ दे रखा है जो कि एरियाज हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क वगैरह हैं जो कि हमें याद करने हैं कहाँ पे किस स्टेट में कौन है। जैसे देखिए जम्मू कश्मीर में यहाँ पे ये डैचीगाम है, राजा जी कारपेट, दुधवा, सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर, शिवपुरी, चंद्रप्रभा, राजगीर, गौरमाता, काजीरंगा, मानस। तो ये सारे याद होने चाहिए हमें किस स्टेट में है। तो इनको आप 1 बाय 1 देख ले आराम से और याद कर लें। जैसे ये देखिए काफ़ी फेमस इसमें नाम दिए हैं। कान्हा, सिमली, तादोबा, संजय गांधी, कंवल, पोचारम, इतुरनागारम, चंदका, दमपारा, रंगा नथितु, बांदीपुर, गुंडी, वेदाथंगल, ये सारे हैं। इनको आप स्टेट वाइज याद कर लीजिए दोस्तों। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार ये कई एग्जाम से पूछे जाते हैं कि नेशनल पार्क एंड सेंचुरी इन विच स्टेट। लेटर इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए वैरायटी ऑफ क्रोकोडाइल फाउंड इन द वर्ल्ड टुडे। क्रोकोडाइल की सिर्फ एक ही वैरायटी है जो वर्ल्ड में पाई जाती है। बर्ड लाइफ इन इंडिया इज़ कलरफुल। जो बर्ड्स हैं वो यहाँ इंडिया में काफ़ी कलरफुल पाए जाते हैं। पीकॉक्स, पिजन, डक्स, पैराकीट्स, क्रेन्स एंड पिजन्स आर सम ऑफ द बर्ड्स इनहैबिटिंग द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स ऑफ द कंट्री। तो ये पीकॉक, पिजन, डक, पैराकीट, क्रेन्स और पिजन्स वगैरह सब ये पाए जाते हैं कई जगहों पे। वी हैव सेलेक्टेड आवर क्राफ्ट फ्रॉम अ बायोडाइवर्स इन्वायरमेंट दैट इज फ्रॉम द रिजर्व ऑफ एडिबल प्लांट्स। और हमारा जो यहाँ पे क्राप भी काफ़ी डाइवर्स है। वी आल्सो एक्सपेरिमेंटेड एंड सेलेक्टेड मैनी मेडिसिनल प्लांट्स। और हम लोगों ने जो है खाने वाले पौधे जो क्राप्स है वो भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड टाइप के हैं और हमारे यहाँ मेडिसिनल प्लांट्स भी काफ़ी हैं। द एनिमल्स वर सेलेक्टेड फ्रॉम लार्ज स्टॉक प्रोवाइडेड बाय नेचर एज मिल्च एनिमल। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी एनिमल सेलेक्ट हैं जो मिल्च एनिमल यानी दूध देने वाले। दे आल्सो प्रोवाइड अस ड्रॉट पावर। वो हमको बैल भी प्रोवाइड करते हैं जो खेती के यूज हो सके। ड्रॉट पावर में, ट्रांसपोर्टेशन में, मीट है, एग में। द फिश प्रोवाइड न्यूट्रिटिव फूड। और फिश से हमें न्यूट्रिटिव फूड तो मिलता ही मिलता है। मैनी इंसेक्ट्स हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स। कई इंसेक्ट्स जो हैं पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। एंड फ्रूट ट्रीज एंड एक्सर्टिंग बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑन सच इंसेक्ट्स इज हार्मफुल। और कई ट्रीज में वो पॉलिनेशन में हेल्पफुल करते हैं और कई ऐसे कीटों को भी नष्ट करने में सहायक होते हैं जो कि नुकसान पहुंचाते हैं। एवरी स्पीसीज हैज़ अ रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम। तो हाँ, जो हमें लगता है कि ये बेकार है, मच्छर बेकार है या मक्खी बेकार है, लेकिन इकोसिस्टम के हिसाब से हर एक स्पीसीज़ का कोई न कोई रोल है। हैंस कंजर्वेशन इज एसेंशियल। इसलिए इनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। एज हैज़ बीन मैंशनड अर्लियर, ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बींग्स, द इकोसिस्टम हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड अबाउट 1300 प्लांट। तो कह रहे हैं कि जो ह्यूमन बींग के द्वारा काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है
है ना, प्लांट एंड एनिमल का। तो उससे क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज हो रही हैं। तो करीब करीब 1300 स्पीसीज आर इंडेंजर्ड एंड 20 स्पीसीज आर एक्सटिंक्ट, और 20 तो गायब ही हो चुकी हैं। क्वाइट अ फ्यू एनिमल स्पीसीज आर आल्सो इंडेंजर्ड एंड सम हैव बिकम एक्सटिंक्ट। कुछ एनिमल स्पीसीज भी इंडेंजर्ड श्रेणी में है और कुछ गायब हो चुकी हैं। द मेन कॉजेज फॉर दिस मेजर थ्रेट टू नेचर और हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर्स। तो ये क्या है, जो ग्रीडी हंटर्स है, लालची शिकारी, वो उनका हंटिंग कर लेते हैं, इससे ऐसा हो रहा है। पोल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड डिपॉजिट्स। और जो पोल्यूशन हो रहा है वो केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट से हो रहा है, एसिड डिपॉजिट होने से हो रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज एंड रेकलेस कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट। और जो आप इंट्रोडक्शन कर रहे हैं यहाँ पे विदेशी जो स्पीसीज़ का, प्लांट्स का, तो उनके कारण, और रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, और बिना सोचे समझे जो फॉरेस्ट की कटिंग हो रही है उसके कारण। बिंग लैंड अंडर कल्टीवेशन एंड हैबिटेशन, उससे क्या है, जो काट रहे हैं फॉरेस्ट उसमें कल्टीवेशन कर रहे हैं और घर बसा रहे हैं, आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्बैलेंस, और इन सब चीज़ों से असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द कंट्री, द गवर्नमेंट हैव टेकन मैनी स्टेप्स। गवर्नमेंट ने कई स्टेप्स लिए हैं, जैसे 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेटअप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने, 18 गवर्नमेंट ने सेटअप कर दिए हैं, जिसमें कोई किसी तरीके की एक्टिविटी नहीं कर सकता है, ऐसा लॉज, कानून बनाए गए हैं। 10 आउट ऑफ दीज द सुंदरबन, नंदा देवी, द गल्फ ऑफ मन्नार, द नीलगिरी, नौकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पचमढ़ी एंड अचानकमार, अमरकंटक हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो दोस्तों ये कहाँ पे है, क्या है, ये मैप से देख के आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये पूछा जाता है 18 बायोस्फीयर रिजर्व में, तो पूछ लिया जाता है कि नौकरेक कहाँ है, मानस कहाँ है, सिमलीपाल है। ये देखिए दोस्तों, ये जो है प्लांट एंड एनिमल्स और इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम से संबंधित जो न्यूज़ वगैरह निकलती हैं उनकी कटिंग यहाँ दिखाई गई कि इसके बारे में कितना अवेयर हो रहे हैं लोग। अभी देखिए यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स, जो ऐसी बर्ड्स हैं जो दूसरे किसी कंट्री से आके यहाँ पे, जब यहाँ पे फेवरेबल सीजन होता है तो यहाँ पे रहती हैं, है ना। सम ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंडिया आर पॉपुलर विद माइग्रेटरी बर्ड्स। जो वेटलैंड है जहाँ पे झील वील है वहाँ पे ये आती हैं। ड्यूरिंग विंटर बर्ड्स सच एज साइबेरियन क्रेन कम इन लार्ज नंबर। साइबेरियन क्रेन आती है काफ़ी बड़ी संख्या। वन सच प्लेस फेवरेट विद बर्ड्स इज द रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ में आती हैं, कच्छ का रण जो है वहाँ आती हैं। एट अ प्लेस वेयर द डेजर्ट मर्ज विद द सी, वहाँ पे डेजर्ट सी से मर्ज हो रहा है। फ्लेमिंगो विद द ब्रिलियंट पिंक प्लूमेज कम इन 1000 टू बिल्ड नेस्ट माउंट्स फ्रॉम द सॉल्टी मड एंड रेज देयर यंग वंस। तो जो वो रंग बिरंगी फ्लेमिंगो है जिसके रंग बिरंगे पंख हैं वो यहाँ आती है और साल्टी मड से अपना घोंसला यहाँ बनाती है और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को जन्म देती है। अंडों से इसके बच्चे यहीं पे निकलते हैं। इट इज़ वन अमंग मैनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइट्स इन द कंट्री, और ये बहुत ही असाधारण चीज़ है यहाँ पे दिखने को मिलती है। इट इज़ नॉट अ रिच नेचुरल हेरिटेज ऑफ कोर्स ऑफ वार्स। ये अब ये देखिए बच्चों, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स ये यहाँ पे इधर यहाँ पे दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ पे दे रखे हैं इस लिस्ट में, है ना। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व्स हम लोगों को याद करने होते हैं, आगे चल के एग्ज़ाम्स वगैरह में आते रहते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये क्या किया है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। तो आप ये याद कर लिए 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स में सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नंदा देवी, नौकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, दिब्रू सैखोवा, अगस्त मलाई, कंचनजंगा, पंचमढ़ी, अचानकमार, अमरकंटक। सेकंड क्या है, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू मैनी बोटेनिकल गार्डन्स बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992। और जो फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जा रहा है बोटेनिकल गार्डन्स को, जैसे कच्छ है, कोल्ड डेजर्ट है ना, शेषाचलम, पन्ना, ये सब। थर्ड क्या था, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। और कई ढेर सारे प्रोजेक्ट भी चलाए जा रहे हैं। 103 नेशनल पार्क्स, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल गार्डन्स आर सेट अप टू टेक केयर ऑफ नेचुरल हेरिटेज। और 103 नेशनल पार्क हैं, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यानी कि अभ्यारण्य है, जूलॉजिकल गार्डन है, जिससे कि ये नेचुरल हेरिटेज को बचाया जा सके। All of us must realize the importance of the natural ecosystem for our own survival। तो हमें सबको इसका इम्पोर्टेंस समझना चाहिए, क्योंकि इसके ही एग्जिस्टेंस से हमारा सर्वाइवल है। इट इज़ पॉसिबल इफ़ indiscriminate destruction of natural environment
इज पुट टू एन इमीडिएट इन। अगर आप हम लोग ऐसे बिना सोचे समझे इसका डिस्कशन करते रहेंगे तो एक दिन इसका सबका अंत होना जरूर हो ही जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, ये करेक्ट आंसर इसमें चूज करना है। टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डज रबर बिलोंग टू। रबर का पौधा किससे बिलोंग करता है? तो वो हमेशा रबर का पौधा तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से बिलोंग करता है। सिंकोना ट्रीज आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ रेनफॉल मोर दैन। तो सिंकोना का जो ट्रीज है वो कहाँ पाया जाएगा? मोर देन, तो वो 100 सेंटीमीटर, जहाँ पे 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होगी, 100 से ज़्यादा वहाँ पाया जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द सिमलीपाल बायो रिजर्व रिलेटेड। जो सिमलीपाल बायो रिजर्व है वो कहाँ है? वो बच्चों उड़ीसा में है, उड़ीसा में। विच ऑफ द फॉलोइंग बायो रिजर्व ऑफ इंडिया इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व। तो दोस्तों यहाँ पे जितने दिए हैं ये सारे इंक्लूडेड हैं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है ऐसा कुछ। फिर ये देखिए क्वेश्चन दिए हैं, तो आप लेसन में जब पढ़ेंगे तो ये सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे क्या क्या है। डिफाइन एन इकोसिस्टम, तो इसका इम्पॉर्टेंट है इस लेसन में, इकोसिस्टम के बारे में तो जानना ज़रूरी है। डिफाइन एन इकोसिस्टम, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द इंडिया, ये भी हम लोग पढ़े हैं। व्हाट इज़ अ बायो रिजर्व, गिव 2 एग्जाम्पल्स, ये भी पढ़ चुके हैं। नेम 2 एनिमल्स हैविंग हैबिटेट इन ट्रॉपिकल एंड माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन, ये तो सब पढ़ चुके हैं। डिस्टिंग्विश करना है फ्लोरा एंड फोरा, फ्लोरा में प्लांट्स आते हैं, फोना में एनिमल्स आते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन मतलब विषुवत रेखा के सदाबहार वन, और डेसिडुअस फॉरेस्ट जो पतझड़ वन है। तो कौन उनमें क्या खासियत है, उनमें कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं, वहाँ कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, इस तरीके से उसको हम डिफरेंस कर लेंगे। नेम डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया एंड डिस्क्राइब द वेजिटेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड। तो डिफरेंट टाइप के जो वेजिटेशन इंडिया में पाए जाते हैं हम लोगों ने अभी पढ़े है ना, अभी ढेर सारे कि माउंटेन, डेजर्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये सब के बारे में। और जो हाई एल्टीट्यूड पे अलग अलग टाइप का वेजिटेशन है, मतलब एल्पाइन फॉरेस्ट आ गया, टुंड्रा आ गया, और स्नो लाइन आ गई, उसके बाद श्रब्स ये सब होता है। और वहाँ पे फिर टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं, इनके बारे में सब इसी में डिस्क्राइब कर लेंगे। क्वाइट अ फ्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स आर इंडेंजर्ड इन इंडिया। हाँ सही बात है। क्यों इंडेंजर्ड है इंडिया में? क्योंकि उनका हैबिटेट नष्ट हो रहा है, यानी कि जो फॉरेस्ट को है उसको कल्टीवेशन और हैबिटेशन के लिए यूज हो रहा है, इसलिए वो इंडेंजर्ड होते जा रहे हैं। और कुछ ग्रीडी हंटर्स हैं वो उनका हंटिंग कर रहे हैं। व्हाई हैज़ इंडिया आ रिच हेरिटेज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इंडिया में काफ़ी डाइवर्सिटी है, यहाँ पे पहले काफ़ी फॉरेस्ट एरिया था, और पूरा एरिया जो है काफ़ी घना फॉरेस्ट से बसा हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे फ्लोरा और फौना की काफ़ी डाइवर्सिटी है। मैप स्किल्स देखिए बच्चों, वन ऑफ द मैप ऑफ इंडिया लेवल द फॉलोइंग एरियाज ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये तो मैप में दिया हुआ है, आप देख के उसे अच्छे से भरना, कहाँ कहाँ पे एरिया है उसको एग्जैक्ट करीब देख लेना, एग्जाम्स में पूछा जाता है। एरिया ऑफ ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, 2 नेशनल पार्क्स ईच इन नॉर्दर्न, 2 नेशनल पार्क्स ईच इन नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो आप चारों साइड में 2-2 नेशनल पार्क अच्छे से देख लो, कोई भी पूछा जा सकता है, कभी कभी नाम से पूछ लेते हैं मैप में। तो बच्चों ये सब कर लेंगे तो आपका ये लेसन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।